Good morning, honorable members. I welcome you all to the second sitting of the 7th session. We will take up start questions. Start question number 35, Sri Lambutang. Mr. Speaker, sir, I am in great confuse with the replies furnished by the government. Sir, this is regarding issue of scheduled tribe certificate to the missings of Arunachal Pradesh. Sir, missings residing in East Siang district are getting and enjoying the scheduled tribe certificates. But the missings residing in lower Dibang Valley and in Namsai districts are not enjoying that facilities. And very funny thing is, sir, elder brother is in East Siang, they are getting ST certificate. Younger brother is again in lower Dibang Valley, but they are denied. To what will the government take the step to issue ST certificate to the missings residing in lower Dibang Valley as well as in Namsai districts on the same line of the ST certificate issued to the missings of East Siang? Thank you, sir. Honorable Minister. Honorable Minister, please reply. Honorable Speaker, sir, scheduled tribe certificate is given to those scheduled tribe people, those who are in the constitutional bill under 1950. But unfortunately, the missing title is not incorporated in that act. So, whosoever may be getting scheduled tribe certificate in Pasigat may be incorporated, maybe in others' name also. That as per missing community who have this schedule, we don't have missing community included in that act. So, Deputy Commissioner of the concerned Deputy Commissioner of the districts, they are giving scheduled tribe as per the constitutional inclusion of 1950 and 51. Thank you, sir. Mr. Speaker, sir, through you, एक सप्लीमेंट्री इस प्रकार की है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस तो मिसिंग है मिसिंग को अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एसटी सर्टिफिकेट आर इश्यूड, व्हाट आर द क्राइटेरियाज? तो मिसिंग को तो मिसिंग देना चाहिए, मिसिंग नहीं दे पाए, दैट इज नॉट इन द इसमें ये नोटिफाइड लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन एंजॉय हो रहा है। तो मेरा सवाल सर थ्रू यू यही था कि ईस्ट सियांग का लुक जैसे एंजॉय हो रहा है तो लेफ्ट आउट मिसिंग को भी उसी तरह से क्या दिया जा सकेगा? दैट इज माय स्पेसिफिक क्वेश्चन सर। थैंक यू। Honorable Speaker, sir, अगर ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में मिसिंग कम्युनिटी का नाम में मेगो, पेगो, दोले एक्सेट्रा में कुछ सर्टिफिकेट दिया है तो किस अनुसार इस पे दिया है उसको डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट सियांग से हम लोग जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज मैं जान रहा है उसका नाम में कहीं हम लोग इशू नहीं होगा, उसको तो मैं परफेक्ट नहीं है, फिर भी जिस मिसिंग का नाम में वहाँ में कुछ दूसरा नाम होने से भी वो मैं ऐसे ये मैं बोल रहा है दे सकता है, अदरवाइज देना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। अगर उसमें ऐसा दिया है तो उसको भी हम लोग इंक्वायरी करने से ठीक है। थैंक यू। Start question number 57, Sri Wangling Nondo. 57, it's your turn.
Speaker, sir, the answer given to my start question number 57 in regard to the running of the EMRS schools in the state. The reply given is not very precise. I would like to state that we have one EMRS school coming up at Khela in Tirap district. It is on the verge of completion. And herein it states that a Eklavya Model Residential School Society will be formed to look into the affairs and the running of the institutions of the EMRS in the states. My question supplementary, sir, is there are 3 schools which are on the verge of completion in the state. One of them being in my constituency of Khela, where I think in a few months the entire infrastructure will be completed. A notification was issued by the government without informing any of the stakeholders or the village authority concerned, and even to me, that this school would be run by some NGO. My question, sir, is when we are on the verge of completion, almost completed, the roads, connectivity, electricity, water supply is yet to be done, and there are certain infrastructure that are yet to be started. Now, before that, how can, without the consultation or the knowledge of the concerned local MLA and those stakeholders, particularly in that village, the government authorizes some NGO to run the institution? Whether the government can clarify on that point. Thanks. Honourable Minister. Honorable Speaker, sir, Eklavya Model जो स्कूल है, this is for the interest of tribal school of the state. तो उसमें यही है जहाँ 50% and above, जहाँ ब्लॉक में ट्राइबल स्कूल ज़्यादा होने से उसमें एक एकलव्य मॉडल स्कूल देता है. तो उसमें देने के बाद यहाँ जो इस स्कूल को चलाने के लिए जो इंटरेस्टेड NGOs, CBOs and others, those who are running education, they are submitting application to the state government, जो governing body. उसमें स्टेट में डिसीजन होता है, मीटिंग होता है स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें मेंबर्स है. तो उस मेंबर ने जितना भी एप्लीकेंट है उसका क्रेडेंशियल, उसका जो एक्टिविटीज़, फर्स्ट एक्सपीरियंस और उसका जितना पास चला है उसको देख के जो स्कूल को चलाना है उसको दे देता है. तो उसी मुताबिक हम लोग लास्ट ईयर में अभी जस्ट EMRS स्कूल ट्रिबिन में है, जस्ट वो कंप्लीट होने वाला है, उसको भी BKB ट्रस्ट को दिया है. उस मीटिंग में EMRS न्यापिन है, उसमें ग्यामर आर्ट को दिया गया है ये. और EMRS केला उसको अरुणाचल शिक्षा विकास समिति नाहरलगुन एक सोसाइटी को दिया है. तो वही है जो इंटरेस्टेड, जो उस स्कूल को चलाने के लिए इंटरेस्टेड वाला जो गवर्निंग बॉडी में ईटानगर में सबमिट करता है ईटानगर के लिए. तो ऐसे वो स्कूल कंप्लीट होगा, उस NGOs लोग उस स्कूल को चलाएगा. यही है ये हम लोग का अभी का गाइडलाइन का मुताबिक. थैंक यू सर. While taking the cognizance of the reply by Honourable Minister in regard to the running of the institutions of EMRS in various locations of the state, herein I would like to state
that I'm not against any NGOs that would want to desire to run institutions in the state. They are most welcome because they will be doing human services, providing education to the children of our state. But my concern is that a committee of the society which is formed, get together, pass a resolution without taking into consideration, into confidence of the local MLA concerned and also the stakeholders of the district. How can the arbitrarily state government decide to let some NGO to run the institution? And moreover, this is a Ministry of Tribal Affairs institution funded by the Ministry of Tribal Affairs. That's a government in India aided, sponsored institution. And all government aided schools, government schools, must follow the principle of secularism. No religious protagonism and influence should be meted out to the students who study. So, in that, any NGO is welcome to partake to running of the institution in any area, provided they give equal representation to all the religious sentiments of the state concerned. Sir, Honorable Speaker, sir, we have district level committee headed by Deputy Commissioner, those who look after that very educational institution, EMRS. And also we have state level committee here. But regarding choice of the NGOs who will run that school, we don't have any that religious and other activities. We being the secular state, we don't see that NGO that NGOs belong to Muslim, that NGOs belong to Hindu, or that NGOs belong to Christianity. We don't see that. So education is for all-round development. Education is for all the people of the state, those the tribal population. So we don't have any criteria of selecting that NGOs that that NGOs belong to that such religion. So we being the secular state, how we do that activities? Thank you, sir. Start question number 65. Sri Nabam Tuki. Honorable Speaker, sir, I start question number 65. Honorable Deputy Chief Minister, जो पावर मंत्री भी है, एश्योरेंस तो दिया है और जब एश्योरेंस दिया तो फिर सप्लीमेंट्री पोर्शन पूछने का सवाल नहीं बनता है, तो 2022 तक कर देगा बोला, तो 2022 तो ज़्यादा दूर नहीं है, तब तो हम इंतजार कर लें. Very good. Satisfied. Okay. Next is question number 53. Sri Ninong Iring. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे कृषि मंत्री से जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब बहुत विस्तार से उन्होंने दिया. फिर भी जिस प्रकार से उन्होंने जो आश्वासन दिया है, पिछले बार शायद हमारा जो फंड कंस्ट्रेंट्स के कारण से जैसे उन्होंने जवाब दिया कि जो मशीनरी है यहाँ नहीं पहुँचा सका. दुख की बात है कि अभी जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं हमारा, और जिस प्रकार से हमारा फसल को जो स्टेम बोरर्स अभी जो अटैक हो रही है, अन्य जितने भी समस्याएं हैं हमारा कृषि विभाग में, खासकर हमारा जो प्लेन एरियाज है, चांगलांग में भी होगा, नामसाई में होगा, लोहित में होगा, लोअर दिबांग, ईस्ट सियांग एंड लोअर सियांग. तो इन इलाकों में इट इज नोन एज द राइस बोल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ पे आप सब ईच क्षेत्र में आप एक ट्रैक्टर देते हैं
या 5 पावर टिलर्स देते हैं, तो ये पूरा नहीं हो पाता है। हम देखा है हमारा पड़ोसी जो राज्य में असम में, वहाँ से हमारे लोग सब्सिडी में या जो हाफ रेट में वहाँ से इनफैक्ट पावर टिलर्स और ट्रैक्टर भी खरीदना पड़ता है। तो इसको पूरा, जैसे आप खुद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अभी सबका प्रयास। तो अभी जो प्रयास का बात करते हैं, मैं आपने जिसमें आप आंकड़ा आपने दिया है कि नहीं, हो केंद्र सरकार से शायद 1630 करोड़ की बात कर रहे हैं, नहीं लाख की बात कर रही हैं। तो इसमें शायद इसको हमारा जो ट्रैक्टर्स और पावर टिलर्स का जो डिमांड्स है उसको सफाइस करने के लिए पूरा आप कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव भी है, जैसे यहाँ हमने कहा कि इसको हम कहते हैं इसको हम एक ऑर्गेनिक स्टेट बनाने जा रहे हैं, तो इसमें जो फर्टिलाइजर्स या जो केमिकल्स जो आती है उसका जैसे पेस्टिसाइड तो शायद जरूरी होगा हमको, लेकिन फर्टिलाइजर्स पे हम इतना ध्यान नहीं देके इनके बदले अगर हम ये फार्म मशीनरी ले सकेंगे वो, और अभी जो पेंडेमिक का समय से बहुत सारे हमारा लेबर्स का हमारा कमी हो रही है, हमारा जो बुलक्स है इनका बहुत FMD होता है, ब्लैक वाटर होता है, तो उसके कारण से बहुत सारा वो फार्म एनिमल्स का भी देहांत हो गया, और लोग अभी खेतों को ऐसे बिना कल्टीवेट करे छोड़ दिया है। तो इसलिए इसका आपको बढ़ावा, और मैं कहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को कि जब आप कृषि विभाग में इतना आप स्ट्रेस दे रहे हैं, तो खास तौर हमारा जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग में इसको और बढ़ावा देने के लिए आप क्या उपाय ले रहे हैं या क्या आप सुझाव देंगे, ये इस सदन को आप हमको इसका ज्ञान देने से हमको बहुत लाभदायक होगा। और मैं चाहूँगा कि हमारा आदरणीय कृषि मंत्री जो जिस प्रकार से वो बहुत व्यक्तिगत रूप में बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही इस कृषि विभाग के लिए वो अच्छा इसको संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जवाब तो बहुत पूर्ण रूप से हम संतुष्ट है, लेकिन फिर भी इस जो मैंने प्रश्न पूछा इसका आप एक जवाब देने से बहुत मैं अच्छा पाता। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, ऑनरेबल मेंबर्स, जो कृषि मैकेनाइजेशंस के अंतर्गत कुछ बातें वो जानकारी चाहते हैं, मैं आपका माध्यम से ऑनरेबल मेंबर्स एंड इस अगस्त हाउस में स्लाइटली थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ कि किसी क्षेत्र में हम क्या क्या प्रावधान रखने का प्लान कर रहे हैं। महोदय जी, आपने सही पूछा कि हमारा फुट हिल्स एरिया में ट्रैक्टर्स का डिमांड ज़्यादा है, ये बहुत सही है। फुट हिल्स एरिया में ट्रैक्टर्स का ज़्यादा है, इसका दो वजह है। एक, इसमें राइस कल्टीवेशंस ज़्यादा होते हैं, पेडी फील्ड्स भी ज़्यादा है। उसका उपरांत ये इलाका में ज़्यादातर बाहर से लेके आदमी लोग को इंगेज करने के वजह पिछले 2 वर्ष का पेंडेमिक युग में हमारा मशीनरी का डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें आपने हमें यह भी पूछा था कि कहीं FMD का वजह से तो मशीनरी का डिमांड नहीं बढ़ा है क्या? मैं इसमें कहना चाहता हूँ FMD का वजह से बिल्कुल मशीनरी का डिमांड आगे नहीं बढ़ा है। मशीनरी का डिमांड ये पेंडेमिक का वजह से, लेबर नहीं मिलने का वजह से ये डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। ये एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, आज का डेट में
जो मोदी सरकार ने सेंटर में एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो आगे बढ़ने के लिए इतना प्रावधान जो कर रहे हैं, इसका इफेक्ट भी धीरे धीरे हमारे ये क्षेत्र में आ रहा है। एरिया एक्सपेंशन ऑन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर का स्लाइटली थोड़ा बढ़ रहा है और उसी क्वांटिटी बढ़ने का अनुसार इनको मशीनरी का डिमांड भी ज़्यादा लग रहा है। इसी का कारण से मशीनरी का डिमांड बढ़ा है, तो उसके लिए हम लोग भी बहुत सा प्लान कर लिया है। सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन के लिए मैं आज बताना चाहता हूं कि 2010 से 2020 तक हम लोग ने 513 ट्रैक्टर्स ही दे पाया, पावर टेलर 1688 दे पाया एंड पोर्टेबल टिलर 250 ही दे पाया है हम लोग आज तक, जो 2010 से लेके 20 तक। पिछले साल भी हम लोग वितरण किया है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन इसमें आप लोग ये मत सोचना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज में हम लोग का ट्रैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूनिफॉर्मली नहीं जा रहा है। ये मैं आगे के लिए कह रहा हूँ, ट्रैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्मली जा नहीं सकता। कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ ट्रैक्टर चलाने का प्रावधान नहीं है, जिसमें हमको छोटा मशीन जरूरत पड़ता है, पावर टेलर, रोटरी टेलर। इसी को हम लोग डिमांड का अनुसार से अभी रेशनलाइज करते हुए हम लोग दे रहे हैं। इसको ट्रैक्टर इस साल भी देगा और अगले साल भी देंगे। लेकिन इसका एक चीज है, हर परिवार में एक ट्रैक्टर देना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम लोग ने कोऑपरेटिव मैकेनाइज सिस्टम का एक फॉर्मूला निकला है, जहां पर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप का ग्रुपिंग जो करके आप लोग बनाएंगे, उसमें हम लोग ने कोऑपरेटिव फार्मिंग का हिसाब से जितना खेती में प्रावधान जरूरत है उसी मुताबिक से मशीनरी हम बनाने का अभी फॉर्मूला किया है। अभी आत्मनिर्भर भारत का अभी लॉन्चिंग करने वाला है, उसी में भी हम लोग इसी का प्रावधान रखी हुई है, जिसके वजह से जो जो खेती में करने वाला ट्रैक्टर जरूरत हो तो ट्रैक्टर ले जाएंगे, पावर टिलर जरूरत है पावर टिलर दे देंगे, तो अगर जरूरत है तो अगर ग्रास कटर जरूरत है तो ग्रास कटर ले जाएंगे। कारण ये सब मशीनें हैं, सीजनल यूज है और बाकी समय में वो आइडल पड़ा रहता है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करने का भी दिल नहीं करता है। अगर इसमें कोऑपरेटिव सिस्टम से हम लोग सही तरीके से चला पाएगा तो हम लोग मशीनरी रिक्वायरमेंट को मीट अप नहीं कर सकेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ओनली हम लोग का डिटरमाइनेशन का जरूरी है। हालांकि इस क्वेश्चन का मुताबिक एफएमडी का हमें अभी इतना विस्तार से बोलने का नहीं है, पर मैं आपको एक मैसेज देना था, इसलिए एफएमडी का ऊपर में एक बताना चाहता हूं कि हमारा गांव वाले हमको मिथुन का सही नंबर्स को भी प्रोजेक्शन करके देते नहीं है। पिछले बार, इस बार का एफएमडी आने से पहले हम लोग ने बहुत संघर्ष करके देखा है, हमारा सारा टीम भेज के देखा है, किसी ने हम लोग को वैक्सीनेशन लगाने नहीं देता है, किसी ने हमको उसका कान में टेकिंग करने नहीं देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे ऊपर में इंसिस्टेंट है कि वैक्सीनेशन पूरा होने का मतलब है आप हर मिथुन को कान में टेक करके छोड़ देना है। पर जब वो कान टेक का हमारा रिकॉर्ड ही नहीं बन पा रहा है, कारण दिस इज ए जो टेक सिस्टम, हम झूठ भी नहीं बोल सकते, तो हमारा जो परफॉर्मेंस ऑफ सेंसस में बहुत कमजोर पड़ रहा है। हम अगर परफॉर्मेंस में सेंसस कम पड़ेंगे तो हमारा एनिमल वेलफेयर के लिए हमको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड मिलना भी मुश्किल होता है। इसलिए इस सदन में मैं सारा मेंबर्स लोग को मेरी ओर से और हमारा चीफ मिनिस्टर की ओर से, डीसीएम के ओर से, हमारा गवर्नमेंट के ओर से अनुरोध है, आप लोग अपना अपने इलाके में जाके गांव वालों को अच्छी तरीके से समझाए। से वैक्सीनेशन से हमारा ना मीट में गड़बड़ होता है, ना दूध में गड़बड़ होता है, ना जन्म में गड़बड़ होता है, और इससे हमको बहुत सा बीमारी से बचता है और आपका मिथुन बच जाएगा। और सही रिकॉर्ड को गवर्नमेंट को दिया जाए ताकि वो रिकॉर्ड बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी अच्छी तरीके से हमको फंड मांगने में सुविधा हो। ये मैसेज आप लोग दे देने से बहुत बढ़िया है, ऐसा मैं अनुरोध करने का आज आपने मौका दिया।
बहुत अच्छा है। आज तक रिपोर्ट का मुताबिक से हमारा साथ में 11,398 मिथुन को बीमार लगा। उसमें से ये रिपोर्ट दिया गया है कि 808 मिथुन मर गया है, लेकिन ये मर गया है गांव वाला का रिपोर्ट है, ना ही इसका डेथ बॉडी दिखा है, ना हम लोग को सबूत पेश किया है। ये भी बहुत ही कंफर्मेशन में बोलना बहुत मुश्किल है। और मिथुन कैसा रहता है जंगल में ये आप सब मालूम है, कारण इस बार वैक्सीनेशन के लिए हमारा आदमी गया, हर जगह में गया। किसी जगह में एक टीम चार आदमी का 3 आदमी का टीम जाते हैं, दिन भर रुकने का बाद में शाम को एक मिथुन जंगल से पकड़ के लाता है, उसको वैक्सीन करता है। बाकी को उन लोगों को पूछा जाए तो बोलते हैं आज मिला नहीं है, 2 दिन रुकना पड़ेगा। नो, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स ऑन इट। इसको हम लोग अच्छी तरीके से बाद में कंट्रोल करने के लिए आप सबका सहयोग जरूरत पड़ेगा, पीआर मेंबर का जरूरत पड़ेगा, गांव वाला लोग को हम लोग एजुकेट करने हम सब मिलके करना पड़ेगा। अदरवाइज ये पॉसिबल आगे भी पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग को सोचता है कि ये मिथुन का नंबर्स पूछ के टैक्स लेगा क्या, मिथुन का नंबर्स पूछ के हम लोग को कुछ करेगा क्या, ऐसा भी कोई लोग भावनाएं रखते हैं। इनको क्लैरिफिकेशन करना अपना इलाके में अपना का ही बात होगा। और मैं ऑनरेबल मेंबर्स को एश्योर करता हूं कि मशीनरी के लिए जितना फार्मर्स नहीं सोचते हम लोग उतना सोच रहे हैं। आई हैव डन ए रिसर्च ऑन इट फ्रॉम द कोरिया, फ्रॉम जहां पर हमारा हिसाब से जो टोपोग्राफी है, हर जगह का वर्ल्ड का भी देखा है कौन सा लाइट मशीनरी है जो 2 आदमी उठा करके हमारा फार्मिंग में काम आए। इसका भी एक्सरसाइज चल रहा है। अगर बन जाए मेरा हिसाब से ये हो जाना चाहिए। और इसी बीच में हम लोग कोऑपरेटिव सिस्टम का फार्म मैकेनाइजेशंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इससे काफी सॉल्यूशन आएगा, ऐसा मैं एश्योरेंस देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री सामनुंग मोसांग। Mr. Honorable Speaker, sir, I have my question with Honorable Minister Agriculture regarding the drought-like situation in Bodumsa and adjacent areas. Honorable Speaker, sir, agriculture is the stable foodstuff of the people. To my questions, however, I got the answers from the Honorable Minister to this House. I am satisfied with the answer and I have no supplementary question. Thank you. Ricardo Nigier, question 61. My question was why appointed day is not given to Lower Siang district. My supplementary submission is that अगर डिस्ट्रिक्ट टेरिटोरी जुरिडिक्शन डिस्प्यूट का साथ में ये अपॉइंटेड डे कनेक्शन नहीं है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेकर के अगर अपॉइंटेड डे में कुछ रिलेवेंसी नहीं है तो हमें अपॉइंटेड डे विथ एक्सपेक्टो अप्रूवल का साथ में दे देने से ठीक है, क्योंकि इन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है आज तक इलीगली फंक्शन हो रहे हैं। तो ये कोर्ट का कहना है और मेरे हिसाब से अपॉइंटेड डे जो है डिस्ट्रिक्ट को फंक्शनलाइजेशन करने के लिए एक ऑफिशियल ऑर्डर है। इसको हम लोग अगर
टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का डिस्प्यूट का साथ नहीं जोड़ करके और हेडक्वार्टर का फाइनलाइजेशन का साथ नहीं जोड़ करके अपॉइंटेड डे को देने से ठीक है, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी 20th लिकाबली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन डिस्प्यूट का अंदर में नहीं है। हालांकि हेडक्वार्टर में थोड़ा सा तनाव है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इंस्टेड ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट को अगर हम लोग इलीगली चलाने से ये भी तो एक सही नहीं है। मेरा एक सबमिशन है कि उसको जल्दी से जल्दी अपॉइंटेड डे को विथ एक्सपेक्ट अप्रूवल का साथ में दिया जाए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है 2017 से फंक्शनलाइज है लेकिन आज तक अपॉइंटेड नहीं है। थैंक यू सर। मुख्यमंत्री जी। मिस्टर स्पीकर सर, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के रूप में श्री कर्दू निकेर जी ऑनरेबल मेंबर ने जो पूछा रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट डेट ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो प्रॉब्लम चल रहा है, आई थिंक ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से मैं कहना चाहेगा कि ये काफ़ी पुराना एक मैटर है जो अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। वे बैक इन 2010 जो वहाँ की जनता लोग ने डी-देन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि एक लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, and accordingly way back in 2013 with the amendment of reorganization of district amendment act 2013 में 4 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ, करादादी, सियांग, नामसाई as well as lower सियांग डिस्ट्रिक्ट। but unfortunately लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो फंक्शनिंग 2013 से 2017 तक प्रैक्टिकली हो नहीं पाया। असेंबली में तो पास कर दिया मगर बहुत सारा इश्यूज था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेके बाउंड्री इश्यूज वगैरह काफ़ी सारा इश्यूज था। तो मगर 2017 में जनता ने रिक्वेस्ट किया कि जो बॉर्डर मैटर है, डिस्प्यूट जो है, हेडक्वार्टर मैटर है, एक बार डीसी को भेज दीजिए, वहाँ में हम लोग बैठ के डीसी के साथ बैठ के सोल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंगली वे बैक इन 2017 हम लोग ने यहाँ से डीसी, एसपी एंड एचओडीज के साथ में यहाँ से पोस्टिंग हुआ। होने का बाद भी वहाँ में जो मैटर है उसको भी सोल्व कर नहीं पाया। उससे पहले इन 2014 उसमें धर्मेंद्र शर्मा डी-देन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उसका अंतर्गत में एक कमेटी ने वहाँ भी जाके उन्होंने विजिट किया और 2016 जनवरी में 2015 में उसका गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी सबमिट हुआ, मगर 2015 में गवर्नमेंट ने उसको एक्शन कुछ लिया नहीं है। फिर दोबारा हमारा टेन्योर में 2017 एक तो कमेटी गठन किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर श्री कमलू मोसांग जी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी 2017 में जाके वहाँ पे जाके विजिट किया, काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने रिपोर्ट सबमिट किया। अकॉर्डिंगली कुछ जो रिकमेंडेशन था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, उसको हम लोग सरकार ने उसको हम लोग ने उसको फंक्शनलाइज हम लोग कर दिया। मगर जो मेन जो प्रॉब्लम जो है कि एक तो हो गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को वहाँ पे फिक्सिंग करना, कहाँ पे बैठाना है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और दूसरा जो हो गया कि उसका बाउंड्री जो डिस्प्यूट है, तो उसको लेके फर्दर फिर डिटेल में जाने के लिए रिसेंट कैबिनेट ने हम लोग ने एक तो कमिटी बनाया ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स का, हेडेड बाय श्री हागे तारी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, along with श्री AK सिंह एंड किनी सिंह। तो 3 मेंबर ऑफिसर्स का कमिटी बना के रिसेंटली वहाँ जाके पब्लिक हियरिंग करके लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन करके वो लोग वापस आया हुआ है। आई थिंक उन लोगों का रिपोर्ट जो सबमिट करना है बाय 20 सितंबर नेक्स्ट मंथ 20 तारीख को गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली फिर रिपोर्ट आने के बाद फिर हम लोग गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कि उसको फर्दर हम लोग किस प्रकार से उसको एड्रेस करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि जब हम लोग प्रॉब्लम को जब सोल्व करना जब कर ही रहा है तो वन गो में ही हम लोग सोल्व करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का जितने भी जो बाउंड्री इश्यूज है, जो कंट्रोवर्सी है, उसको भी सोल्व कर लेंगे और साथ साथ हेडक्वार्टर को भी हम लोग फिक्स कर देंगे। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं खास करके हमारा सियांग बेल्ट के जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं और सियांग बेल्ट में 2 हमारा एपेक्स बॉडी है, अपना सिविल
बॉडीज आदि बाने केबांग और गालो वेलफेयर सोसाइटी। तो उन दोनों एपेक्स बॉडी को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आदि लैंड, गालो लैंड, ये लैंड, वो लैंड, आदि लैंड, गालो लैंड बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो होता है एज पर हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मुताबिक हम लोग हेडक्वार्टर फिक्स करते हैं या बाउंड्री फिक्स करते हैं, तो अकॉर्डिंगली सरकार हम लोग काम करेंगे। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके माध्यम से जो सियांग बेल्ट के जितने भी जो मेंबर्स हैं, हम सभी मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी अपना एरिया में अपना जनता को जाके अच्छे से आप लोग बताना है कि ये आदि गालो वो नाम बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि ये आदि गालो होते रहेगा तो ये कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। ये अगर आप लोग वाकई चाहते हैं कि लोअर सियांग का इशू को सोल्व करें तो आदि गालो बोलना आप लोग बंद कर दीजिए। तो ये मैं आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू स्पीकर साहब। श्री Kenturina. Under question number, start question number 55, there are two questions, A and B. The answer of B is, I am satisfied. Answer of question A. So I am willing to read it out so that every one of us can listen it. Whether local team assisted self-help survey report of subcommittee dated 28 February 2010 on area verification of proposed permanent headquarters, district headquarters of Lower Siang district, which fall around 27 degree north longitude and 94 degree east longitude, namely 1 Dorle, 2 Tale, 3 Tukel, 4 Rani, 5 Looking, Kamu, 6 Mekulole, 7 Ngopi, 8 Large Plain, Ngape, under forest reserve. Question is on forest reserve, not on record. Sir, answer is here, please, sir. There is no such record. I did not ask record. I ask whether it falls under forest reserve. Yes or no, it is the answer. So, sir, I want to know that whether these plain lanes fall under forest reserve or not. This is my supplementary question or main question. This is the main question. Please, yes or no? Yeah, or no, Chief Minister? Yeah. He wants only yes or no. अभी ऑनरेबल स्पीकर साहब येस और नो बोलने के लिए आई थिंक ऑनरेबल मेंबर ने एक अलग डिपार्टमेंट को क्वेश्चन पूछ दिया। बट दिस क्वेश्चन हैव गॉन टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बट इट हैज बीन एड्रेस्ड टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रिप्लाई फर्निश किया इसमें तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पास तो रिप्लाई नहीं है इसका। देयर इज नो सच रिकॉर्ड विद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। बट सेइंग सो जो ऑनरेबल मेंबर साहब का जो कंसर्न है कि वेदर ऑल दिस एरियाज कम अंडर फॉरेस्ट रिजर्व और नॉट, I will get back to forest department and I will let the member know through you. Thank you, sir. Third question number 45, Sri Techikaso. स्पीकर सर, हम मिनिस्टर फॉरेस्ट से ईटानगर का जो फॉरेस्ट लेंथ कहाँ तक है पूछा था, और मेरा पूछने का कारण था क्योंकि आज कुछ दिनों से शायद 4-5 महीना से गांव वाला का जो ईटानगर में जैसे 7 विलेज है, गंगा, चिंपू, जोली, लेही, मदन विलेज, पोपू, बुरुम, तोराजुली, तो 4-5 महीना से जनता को इतना परेशान कर रहा है। आपका जो गांव है फॉरेस्ट लैंड में है और आपका एलपीसी कैंसिल किया जाएगा। वो 4-5 महीना से काफी तकलीफें दे रहा है, इसीलिए मैं इसको मजबूरी से पूछना पड़ा।
लेकिन मंत्री साहब ने जो रिप्लाई तो दिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि मंत्री साहब ने जो रिप्लाई दिया है, ईटानगर में जैसे कि A11.25 का किलोमीटर का सरकार को जो ईटानगर को कैपिटल बनाने के लिए जमीन दिया गया है, और जो 7 विलेज को दिया गया कि 17.17 किलोमीटर 95 का किलोमीटर का दिया गया है, लेकिन ईटानगर में कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, फॉरेस्ट का जमीन में कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन गांव में काफ़ी इंक्रोचमेंट है और वो केस में है, मंत्री साहब ने दिया है। तो इसे मेरा मतलब कहने का था कि मेरा रखने का था कि ये ईटानगर जो है, जो मेरा ईटानगर, क्योंकि हम सभी का ईटानगर तो है, और मैं इसलिए लाना पड़ा। जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गांवों में इंक्रोचमेंट अगर दिखाई दिया, लेकिन हम जहाँ तक हम दिखाई देता है कि ईटानगर का एक पीने का जो पानी का जल जो सोर्स है, एक जो है आपका चंकी रिवर है, और एक जो है पोपू रिवर है, और एक जो है आपका न्योरची रिवर है। तो आज तो गांव वाला तो खेत करने के लिए बंद कर दिया। तो आज देखा जाए, ये जो है आपका दोरिया पहाड़ जो पोपू रिवर का जो ऊपर में और जो चंकी रिवर का ऊपर में इतना जंगल को साफ करते गया। तो मेरा कहने का था कि अगर इसी तरह की अगर ये हम दिखाई देता है कि वहाँ फॉरेस्ट का लैंड में इंक्रोचमेंट है, अगर इसको अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर दिखाई नहीं दिया तो कल को ये जो आपका सबसे ज़्यादा जो हाइट है, जो राजनिवास होगा और जो मुवतू होगा, वहाँ अगर खड़ा करके अगर देखने से शायद इंक्रोचमेंट को दिखाई देगा होगा। ये जो 60 असेंबली में जो आप सभी से भी मेरा अनुरोध होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जरूर दिखाई देगा होगा, तो सिर्फ गाँव में नहीं देखे। तो इसलिए हम कहना पड़ रहा कि वहाँ का पेड़ पौधे अगर खत्म हो जाएगा, आज तो नहीं होगा, कल तो नहीं होगा, अगर आने वाला जो 15 साल 20 साल 25 साल का बाद अगर हो पेड़ पौधे अगर खत्म हो जाएगा, आने वाला जो जेनरेशन है ईटानगर में जो माता पिता भाई बहन है जो बेटा है, उनको पानी के लिए तरफ तरफ के मरना पड़ेगा। हाँ, कुछ बड़ा लोग होगा और अपने इंतजाम कर सकता है कि जो हम आगे तक कहने के लिए कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत लोग को काफ़ी तकलीफ मिलेगा आने वाला 10-15 साल 20-25 साल का बाद। और आज हम इसलिए इसको लाना पड़ा कि इसे आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर वक्त रहते समय रहते उन्हें अगर पेड़ पौधों को नहीं काटने के लिए अगर बंदोबस्त किया जाए, तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आने वाला दिनों में कम से कम अब तक 20-25 साल में जो यहाँ जो ईटानगर में जो रहने वाला को पीने का पानी के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। अगर ये इंतजाम अगर आप करने जा रहे हैं ना, और ना इसी तरह की छोड़ने जा रहा है। मंत्री साहब से मेरा भाषण चाहिए था। मंत्री जी। अध्यक्ष जी, ये स्टार क्वेश्चन नंबर 45 माननीय विधायक जी ने सवाल किया कि किस प्रकार से अपना कैपिटल में और ईटानगर का पेड़ पौधा को बचाया जाए, एक सुझाव भी दिया। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी को बताना चाहूँगा कि टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईटानगर एरिया में 140.8 स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा 140.8 स्क्वायर किलोमीटर ये अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, जिसमें से 11.25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो एक्सक्लूडेड है,
जो ईटानगर के लिए, जो अपना कैपिटल के लिए है कि 11.25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्सक्लूडेड है, जो अपना कैपिटल ईटानगर के लिए, एंड 17.92 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्सक्लूडेड फॉर 7 गांवों के लिए, जिसमें से ताराजुली, दोरम, सूट, गंगा, ओट, पम एंड जोलंग ब्लेस। और आपने जो क्वेश्चन किया कि कितने इंक्रोचमेंट हुआ है ये ईटानगर में, अभी तक 25 स्क्वायर किलोमीटर वो पूरा कैपिटल रीजन में, इस फ्रॉम होलोंगी, बांदरदेवा, ईटानगर, नारलगन, पूरा कैपिटल का फेरी में 25 स्क्वायर किलोमीटर अभी तक एंक्रोचमेंट करने जा रहा है, जो अपना डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड में। इसको रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने सख्त से सख्त कदम उठाया, सरकार ने पूरा कदम उठाया कि जो एंक्रोचमेंट है, आपने सही कहा कि पेड़ पौधा को, अपना कैपिटल को जो एंक्रोच करेगा, जमीन कटाया जा रहा, घास का पूरा घास को खत्म कर रहा है, गांची को, कल को फ्यूचर में आके प्रॉब्लम होगा। अगर आज अभी हम नहीं रोकेगा तो फ्यूचर के लिए जरूर प्रॉब्लम आएगा, पानी के लिए प्रॉब्लम होगा, हमको ऑक्सीजन कम मिलेगा, गांची का क्या वैल्यू है वो हम सब समझते हैं, क्योंकि उसी से हम ऑक्सीजन मिलता है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि सदन में थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर सर, कि सबसे एशिया में सबसे जंगल कहाँ है बोलेगा तो इंडिया में, इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ है बोलेगा तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कहाँ है बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो हम देश भर में, विश्व भर में हम ऑक्सीजन देते हैं, और अभी इतना हमारा प्रदेश में इतना अभी तक बिगड़ा नहीं है, जो अभी भी हम उसको नियंत्रण रेखा तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने पूरा इनिशिएट किया, डिपार्टमेंट ने, कि जिन जिन लोगों ने जो एंक्रोचमेंट किया, होलोंगी से लेके चिंपू, बांदरदेवा, उसको सारा एविक्शन हम लोगों ने एविक्शन ड्राइव शुरू कर दिया, और बहुत लोगों का घर हम लोगों ने जो ऑक्युपाइड किया, कितना लोगों को हम लोगों ने वेकेट किया, एविक्शन शुरू किया। तो अब एविक्शन करने के बाद सभी जितने ने जिसको जो एविक्शन किया वो जाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वहाँ कंप्लेंट, वहाँ से स्टे ऑर्डर लेके वहाँ डिपार्टमेंट में और डिप्टी कमिश्नर वहाँ में हमारा ये स्टे हो गया। इस प्रकार का जो केस है, जितना भी हम लोगों ने एविक्शन किया, जाके स्टे ऑर्डर ले लेते ऑनरेबल हाई कोर्ट से, सीजीएम से। तो मेरा ये थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सदन में जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स, आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो पर्यावरण को, जिस प्रकार से जो नुकसान कर रहा है, जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, हम सब सिर्फ ये इतना ही सब गवर्नमेंट का ऊपर डिपेंड नहीं करके आप सब भी कोऑपरेट कीजिए, आप सभी लोगों को जागरूकता दीजिए कि इस प्रकार का ना हो। अपना प्रदेश, खास करके अपना कैपिटल ईटानगर ग्रीनरी हो, क्लीन हो, हमको शुद्ध हवा मिले। तो इस प्रकार का जो अवेयरनेस हम सब कैपिटल का, खास करके ऑनरेबल यहाँ का जो ऑनरेबल एमएलए साहब को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके पास जो जो एविक्शन, जिसको ऑर्डर दिया, जिसको एविक्शन किया, वो जाके सही में यहाँ का कैपिटल एमएलए के पास जाते होंगे कि रिक्वेस्ट करता होगा, उसको रुकाइए, सरकार को बोलिए। लेकिन मैं ऑनरेबल स्पीकर सर थ्रू यू मैं आप आश्वासन देना चाहूंगा कि ये जितना इंक्रोचमेंट जो करने जा रहे हैं 25 स्क्वायर किलोमीटर को, ये इसके लिए हम लोग पूरा जरूर सरकार जो प्रतिबद्ध है, उसको हम एविक्शन ये ड्राइव होते रहेगा और इसको एविक्शन करके ही हम लोग छोड़ेंगे। तो ये मैं सदन को मैं आश्वासन देना चाहूंगा। थैंक यू। श्री तरुण दत्त। Thank you, sir. Honorable Speakers,
मेरा जो क्वेश्चन था बाउंड्री इश्यू ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश, हमने गवर्नमेंट को यही पूछा था वेदर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज वेल अवेयर ऑफ द बाउंड्री इश्यूज बिटवीन नेबरिंग स्टेट ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश. ये रिप्लाई तो मिला है यस सर. व्हाट इज द लेटेस्ट स्टेटस ऑफ डेक्स बाउंड्री इशू, उसका भी रिप्लाई मिला है. What step has been taken in the government of Arunachal Pradesh with Assam counterpart when the matter is sub judice in the Supreme Court? That was my question. Then what step has been taken by both states government so far to settle the matter? इसमें हमने देखा है लास्ट 2026 अक्टूबर को ऑनरेबल Minister Border Affairs with his Minister High Power Ministry Committee मीटिंग तो कंडक्ट किया. उसमें हम लोगों को सबको एक 12 डिस्ट्रिक्ट है हमारा टच आसाम से, उन सब ऑनरेबल एमएलएस, डिप्टी कमिश्नर्स एंड एसपी लोगों को बुलाया गया था. उसमें आश्वासन दिया है कि हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दिया है डीसी लोगों को कि एक्सरसाइज शुरू करो बोलकर. रिसेंटली ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी शिलोंग आए थे. टीवी में देखा था कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट से बाहर में ये जो आसाम अरुणाचल और दी नेबरिंग स्टेट्स को सॉल्यूशन लाएंगे बोलकर सेटल करना है आउट ऑफ द कोर्ट. बहुत अच्छा सुझाव है. आई एक्सटेंड माई थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and also the Honorable Chief Minister, both Assam and Arunachal Pradesh, who has initiated this outside court में जो solution लाने का बहुत अच्छा सुझाव है. And at the same time, I must thank to Honorable Minister Border Affairs and High Power Committee members को, Minister को, कि इन्होंने बहुत tirelessly काम कर रहा है. We are also from my side there will be always cooperation and peaceful coexistence के लिए हम लोग करना है. And boundaries should be settled once for all with the ये जो है आपका बोर्दोलोई साहब का जो वन मैन एक्सपर्ट डिसीजन को हम लोग 1951 का नहीं लेना है. एंड मेरा सुझाव है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने लोकल कमेटी अंडर द तरुण चटर्जी का कमेटी में बनाए, उसमें हम लोग गौर देखना है. साथ में अभी जो लेटेस्ट स्टेटस ये होना है कि एज इज वेयर इज बेसिस में जो जैसा आदमी बैठ गया उसका डिसीजन लेने से बहुत अच्छा होंगे. असम को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अरुणाचल गवर्नमेंट को भी, और मैं अपना कॉलेज लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी जो भी हमारा हाई पावर कमेटी मिनिस्ट्री चल रहा है इसमें कोई चोटपट नहीं होना है. हम लोग ट्राई करना है पीसफुली असम काउंटर साइड के हम लोग भी टैकल करना है. विद दिस थैंक यू. आई एम सैटिस्फाइड विद द रिप्लाई गिवन बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर. थैंक यू वेरी मच. Just I want to thank honorable member for representing me in the floor of the house. Thank you. The mutual admiration. Okay, the next question number 68, Wanglam Sawin. अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे समय दिया इसलिए धन्यवाद देता हूँ. सर मैं उत्तर तो मिला मुझे, लेकिन इसमें होगा नहीं होगा ऐसा उत्तर मिला है. मैं आपका थ्रो ये सदन को ये जानकारी देना चाहता हूँ. नैनो टेक्नोलॉजी PMGSY में इंट्रोड्यूस किया और तिराबोर लॉन्गडिंग में एक्सपेरिमेंट किया. लास्ट 3 इयर्स से हम लोग देखा है जो जो बनाया गया नैनो टेक्नोलॉजी से वो रास्ता 6 महीना का बाद में पूरा फिर बिखर गया. अभी उसको कौन ठीक करेगा? कॉन्ट्रैक्टर बोलता है हम लोग को तो जैसा बोलता है वैसा क्या है. तो ये आपका वेदर का आपका टेक्नोलॉजी का ऊपर में आप लोग चर्चा करना चाहिए. सरकार इसमें ध्यान देना चाहिए. तो अभी जो जो रास्ता बनाया सर वो अभी नहीं है. मेरा कंस्टिट्यूंसी में 4 ऐसा रास्ता है जो लास्ट ईयर कंप्लीट किया, अभी चलने का लायक नहीं है. और जो अभी बन रहा है कोई कोई आधा बना है, कोई कोई तो अभी शुरू कर रहा है. तो इसमें डिपार्टमेंट मुझे तो आंसर दिया है. ये खराब तो हुआ है, उसका नॉलेज डिपार्टमेंट का साथ है.
और मैं पूछा इसमें, तब इसको यूजर एंड बेनिफिट के लिए क्या सरकार या डिपार्टमेंट उसको देख रहा है। इसमें बोला गया है, हाँ आपने जो पूछा है कन्वेंशनल वे में हम लोग बनाने जा रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, अगर स्टेट सरकार पैसा देगा तो, क्योंकि कन्वेंशनल वे में ज़्यादा पैसा जाता है। और अभी नैनो टेक्नोलॉजी में मुझे जो बताया गया 15-20% कम लागत में ये रास्ता बनता है। वो मिट्टी के साथ में थोड़ा सीमेंट और केमिकल बना के मिला के बनाता है, वो सस्टेनेबल है ही नहीं। तो इसमें yes can be changed provided the resources is made out from state budget दिया गया है। इसका मतलब जो PMGSY का अनुसार सेंक्शन दिया गया है उसी में से कन्वेंशनल वे में नहीं बना पाता है। तो अभी जो बनाया गया है वो खराब हो चुका है, उसको क्या किया जाएगा, मैं आपका द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूँगा। जो खराब हो चुका है बनाने का बाद में भी नैनो टेक्नोलॉजी से जो बनाया था उसको कैसा ठीक किया जाएगा। और अभी जो कन्वेंशनल वे में जो बनाएगा, अभी बाकी जो रास्ता है तिराप लोंगडिंग में पूरा नैनो टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर में ये तो क्वेश्चन जा रहा है या रिक्वेस्ट करेगा हम खुद भी कि तब तो अगर PMGSY का नॉर्म्स के हिसाब से नैनो टेक्नोलॉजी में जो रास्ता लिया गया है वो कन्वेंशनल में ही लिया जाए, और सरकार जो इसमें ऐड करना चाहिए वो मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ऑनरेबल CM, ऑनरेबल डिप्टी CM और पूरा सरकार को ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, तिराप लोंगडिंग चांगलांग में जो नैनो टेक्नोलॉजी का रास्ता है उसको दोबारा विजिट किया जाए। इसलिए जो खराब हो गया है उसको कैसा फिर बनाएगा, और कन्वेंशनल वे में अभी बनाना चाहिए तो बोला है, लेकिन कंडीशन दिया गया है बजट स्टेट बजट से अगर फंड ऐड करेगा तो इसका ऊपर में मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्या किया जाएगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये एग्जैक्ट रिप्लाई देने से आगे मैं थोड़ा इलाइटन करना चाहता हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी अरुणाचल के लिए इट इज समथिंग न्यू टू दिस स्टेट। उसका एप्लीकेशन वेदर इट इज प्रैक्टिकेबल और नॉट प्रैक्टिकल में इतना भी खास मालूम नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो टेस्टिंग बेसिस में अरुणाचल में कहीं अप्लाई किया गया है, आपका वहाँ में मेचुका में भी है, आई हैव सीन ऑल्सो। तो हमारा ये सोच था डिपार्टमेंट का कि तिराप और लोंगडिंग, अभी लोंगडिंग हो गया, पहले तिराप ही था, तो चांगलांग इज नॉट इंक्लूडेड इन PMGSY। तो वहाँ के इंजीनियर जो थे वो लोग उसका सोच था कि पत्थर और ये जैसे RBM बोलता है, पत्थर बोलता है, चिप्स बोलता है, बोल्डर, जो भी चीज़ है मटेरियल लोंगडिंग और तिराप में अवेलेबल नहीं होता, इतना असम से लाना पड़ता है। तो असम से लाने से मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर हो जाए, ये सोच के तिराप और लोंगडिंग में मैक्सिमम रोड लेंथ को अप्लाई किया गया। वो सही है कि ये टेक्नोलॉजी ये वजह ये सोइल फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि वो सोइल के साथ में मिक्सिंग करना पड़ता है। ये मॉइस्चर का भी फैक्टर हो सकता है, रेनफॉल का भी हो सकता है, क्लाइमेट का भी हो सकता है, टेम्परेचर का भी हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्टर वाला लोग तो क्योंकि इट इज़ नॉट ए कन्वेंशनल मेथड, पहले से प्रैक्टिस करके नहीं आया था, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर लोग को भी इतना नॉलेज नहीं। और मेनली ये लेबरर्स जो भी कॉन्ट्रैक्टर ये नैनो टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए लगाता है, उनका सोइल का बारे में तो उनको तो इतना खास मालूम नहीं है, और मिक्सर जो केमिकल है वो चीज़ मिक्स करने के लिए उनको इतना खास मालूम नहीं है। वो कितना करते आ रहा था या कितना करना उनको इतना ये टेक्नोलॉजी का बारे में लेबरर्स को मेनली मालूम नहीं है। एंड ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट RWD का, तो डिपार्टमेंट का पास में भी हम लोग का एक्सपर्ट है, हम लोग का कुछ लोग है एक्सपर्ट, लेकिन वो लोग एक्सपर्ट लोग भी थ्योरेटिकली एक्सपर्ट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो अरुणाचल में नैनो टेक्नोलॉजी तो फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई किया गया है, वो चीज़ तो हमारे इंजीनियर लोगों को इतना खास मालूम नहीं। आई एम रियली ऑनेस्टली स्पीकिंग टू द हाउस थ्रू यू सर। तो इसमें हम लोग ये चिंता कर रहा है, ठीक है,
कहीं कहीं में अगर ये काम अगर सही नहीं, सूटेबल नहीं है, तो उसको जो इनकम्प्लीट पोर्शन है उसको डिविएशन करके कन्वेंशनल मेथड में लाना है। इट इज़ अवर ऑप्शन। जो अभी साबिर साहब ने जो पूछा है उसका बारे में, सपोज जो काम कर चुका है और ख़राब हो गया, तो उसके लिए तो हम लोग कुछ उपाय करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग एक्सपर्ट लोग, हमारे इंजीनियर एक्सपर्ट लोग को हम लोग लॉन्गडिंग में खोंसा में भेज के हम लोग जो रिपोर्ट ले रहा है, और रिपोर्ट जब आएगा, आ भी चुका है, कुछ कुछ रिपोर्ट आ भी चुका है, तो हमारा डिपार्टमेंट चर्चा में करते जा रहा है। हम लोग और भी चर्चा करेंगे और करके उसको हम लोग गवर्नमेंट को प्लेस करेंगे, whether should we continue with this technology or whether we should go for the conventional method, or wherever the resources available, that will also lies with the government of Arunachal Pradesh under the able and dynamic leadership of Honorable Chief Minister and Honorable Deputy Chief Minister। तो इसका बारे में मैं अभी वादा नहीं कर सकता हूँ कि जो खराब हो गया उसका बारे में अभी मैं इसको कन्वेंशनल मेथड में जाएगा या नहीं जाएगा, या फंड कहाँ से लाएगा, उसका बारे में मैं अभी वादा नहीं कर सकता हूँ। बट आई कैन एश्योर हिम दैट that part will pursue and will collect all the reports from the rest of the district and come to the conclusion with the proposal to the government. Thank you, sir. Any supplementary? Yes, please, Gabriel. Honorable Speaker, sir, इसमें ऐसा है जो नैनो टेक्नोलॉजी एक अच्छा ये टेक्नोलॉजी होता होगा शायद, लेकिन ये गलत जगह पे इस्तेमाल हुआ है। और इनफैक्ट द फर्स्ट जो कंप्लीटेड नैनो टेक्नोलॉजी का जो रोड है वो मेरा अपना ही गांव में हुआ है, जहां मुझे हेडक्वार्टर से मेरा अपना गांव जाने के लिए 8 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस था, उसके लिए चूंकि ये पूरा बर्बाद हो चुका है, लिहाजा मुझे फिर वो आसाम होकर जाना पड़ता है। इट टेक्स अराउंड टेकिंग डिस्टेंस ऑफ अराउंड 15 किलोमीटर्स। तो अभी चूंकि मंत्री जी आश्वासन नहीं दे पा रहे कि उसका सेंक्शंस वो दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन बात यह है कि इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, उस प्रोजेक्ट को एक गिना पिक पे तौर पे इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए अभी पब्लिक सफ़र कर रहा है। अभी इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली देयर द एंटायर लाइन रोड लाइन जो है नैनो में जो लाया है, इट्स अराउंड 35 किलोमीटर्स जो इम्पोर्टेंट विलेजेस को कनेक्ट होता है। तो चूंकि ये नैनो में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ है, तो क्रूशल्स जो पैचेस में इसका सीरियस डैमेजेस हुआ है, जिसकी वजह से एट टाइम्स इट इज the road is rendered not motorable। तो इसके लिए मैं सरकार से फिर मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एट एनी कॉस्ट द गवर्नमेंट मस्ट एश्योर, अगर एश्योर करे तो ठीक रहेगा कि उसको जल्द से जल्द उस रोड को रिपेयर करे और आइंदा ये टेक्नोलॉजी अरुणाचल में किसी जगह पे इस्तेमाल ना करे, ताकि हमारा पब्लिक इसके लिए सफर ना करना पड़े इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू। मंत्री जी ऐसा है, बिकॉज आई वाज आल्सो टोल्ड कि आपके वहाँ पे ये पायलट प्रोजेक्ट हुआ था नैनो का, तो अभी ये बता रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं है, तो व्हाई इट वाज एक्सटेंडेड टू अदर पार्ट ऑफ द स्टेट? बिकॉज पायलट प्रोजेक्ट हैज टू बी प्रूवन। व्हेन इट्स रियली सक्सेसफुल देन यू शुड एक्सटेंड इट टू द अदर पार्ट। जैसे आपने अभी मेचुका का भी जिक्र किया है, लाइक मेनी ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स मस्ट बी फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। जैसे वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, लेकिन इट्स ऑल इन शैम्बल नाउ, वो गड्ढा हो गया, उखड़ के आ रहा है। तो इवन माई क्वेश्चन इज to the department who is technically they should be assessing the whole thing. When it was not successful as a pilot project, they shouldn't have introduced in other locations. तो उसका क्या करेंगे वही आपको पूछ रहा है, तो आप थोड़ा जवाब दे दीजिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, इनफैक्ट आपने जो यहाँ पे कंसर्न जो रेज किया रिगार्डिंग PMGSY और जो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, ऑनरेबल मेंबर साविन जी और गैब्रियल जी ने अभी इसका जिक्र किया। एंड इनफैक्ट जहाँ तक हमारा जो नॉलेज है, इनफैक्ट PMGSY में आउट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कुछ परसेंटेज मिनिस्ट्री ने फ्लेक्सिबिलिटी रखा था कि आपको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तौर पे आप लोग शिफ्ट कर सकता है ऑन पायलट बेसिस। सो अकॉर्डिंगली RWD डिपार्टमेंट ने कुछ सर्टेन सेक्शंस ऑफ रोड को सेलेक्ट किया, जैसे आपको वहाँ भी है और 2-3 डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो एक साथ वो लोग ने नैनो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके हर एक जगह में एक साथ काम स्टार्ट किया। एंड द सक्सेस रेट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट मच सेटिस्फैक्टरी। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले मैंने RWD डिपार्टमेंट का एक रिव्यू लिया था PMGSY का, तो वहाँ में भी इस रोड का बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा हुआ। इनफैक्ट अभी जो रोड डिपार्टमेंट ने एक नया टेक्नोलॉजी कुछ अच्छा चीज़ करेंगे बोल के आया, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ
टेक्नोलॉजी ठीक नहीं होने का कारण से या उन लोगों का अच्छे से नो हाउ नहीं होने का कारण से ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने इंटरव्यू किया, क्योंकि आई हैव टू एश्योर द हाउस थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर साहब। डिपार्टमेंट को मैं 1 मंथ का मैं टाइम दे दूंगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हर एक नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ अभी काम अभी जो हुआ है उसका एग्जामिन करके, एंड इट शुड गेट बैक टू गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ्स टाइम। तो अकॉर्डिंगली अक्टूबर में हम फिर उसको एग्जामिन करके उसका फंडिंग सोर्स कहाँ से करके उस रोड को ठीक करेंगे। हम लोग आने वाला दिनों में टेकअप करेंगे। So the question hour is over now. Honorable members, I have received requests from Sri Jambe Tashi and Sri Nyatu Dukam for leave of absence, and I have allowed their request. So now the next item, 0-hour discussion. Sri Lokam Tasar may raise the matter regarding centralize the transfer and posting of Group C and D staffs of District Administration to General Administration Department and mechanism to monitor the detailed work progress reports of all government employees in the bracket contractual and regular bracket close. Member may please. August House. Which I feel very necessary to explain before the members of the August House and to the Treasury bench and to the general people as well. My first reasoning point is that the state government, the government expenditure incurs total 60% of the fund allocation for salary head, government employees salary head, which everybody know there is a